everyone. I'm Anshika Nagpal. Welcome you all on behalf of Vivekanand College, who is in collaboration with Dr. Bhimrao Ambedkar College, University of Delhi, under the aegis of District Legal Service Authority, Shadra. I feel privileged to extend my warm welcome to our convener, Dr. Sandhya Jain, our coordinator, Ms. Lakshmi, and our guest speaker, Ms. Akanksha Vyas. Also, a warm welcome to all the teachers present here and the attendees who are here to learn something new. I would like to go over a few points so that you know how to participate in today's event. Kindly mute your mics and switch on your cameras so that this session becomes more interactive. And secondly, if you face any questions, you are requested to type your questions into the question pane of the control panel, which will be discussed at the end. Now, I would like to invite our guest speaker for the event, Ms. Akanksha Vyas. She completed her graduation from Government Law College, Mumbai in 2011 and post-graduation from NALSAR University in Hyderabad in 2013. In 2013 itself, Ms. Akanksha Vyas joined the DJS and since then she has held various posts till date. She has worked as MM at West District Tis Hazari Courts, MM North West District Rohini Courts, and MM05 in District Court at Karkaduma. She is an avid reader with a penchant of traveling and is enthusiastic about nature and working for the betterment of underprivileged. I would request ma'am to take up this virtual stage and enlighten us with the topic gender justice, which includes domestic violence and protection of women under Domestic Violence Act 2005 and sexual harassment at workplace. Over to you, ma'am. A very good evening to everyone. Uh, it is very heartening to see that there are about 93 participants in at this particular virtual platform. तो मुझे ये देखना है. First of all, I would like to apologize for being late. I had another session that I had to attend. आज का जो and also thank you so much for the kind words. हमारा टॉपिक है वो है women related laws and in particular the Domestic Violence Act 2005. फीमेल्स के प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे लॉज बनाए गए हैं. there is a general statute of criminal law which is the Indian Penal Code. आप सब लोगों को शायद हो सकता है कुछ आप में से कुछ बच्चों ने इंडियन पीनल कोड का नाम सुना हो, कुछ बच्चों ने ना भी सुना हो, बट just to get the context, there's a general criminal law which is called the Indian Penal Code, which offenses, उन ऑफेंसेस की क्या क्या पेनल्टीज होंगी ये भी इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है. लेकिन जैसे जैसे समाज में कोई नई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि एग्जिस्टिंग लॉ से कवर्ड नहीं है, तो पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर्स को सेपरेट स्टैट्यूट्स यानी लॉ कानून भी बनाने पड़ते हैं. नाउ डोमेस्टिक वायलेंस, वी ऑल, आप लोगों ने, आप आई familiar with at least the term डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा एक बहुत ही बड़ा. डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन है जितना I mean if we are under any kind of if we are under any kind of understanding कि ये उतना होता नहीं है या ये इतनी कॉमन चीज नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं गलत है. घरेलू हिंसा बहुत कॉमन अकरेंस है जो डे टू डे लाइफ में कई औरतों के साथ हाउस होल्ड्स में होती रहती है. डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस जो है, before coming to the definition of domestic violence, I'm assuming the participants are familiar with the concept of दहेज प्रथा, कि जो दहेज प्रथा वायलेंस की तरह एक बहुत ही बड़ा सोशल इविल है. और जो दहेज की प्रथा है इसको पीनलाइज करने के लिए इंडियन पीनल कोड में एक ऑफेंस भी बनाया गया है, which is section 498 IPC, which penalizes cruelty of any woman on account of failure to meet any demand for dowry,
लेकिन क्या होता है कि घर में जो वायलेंस हो रही है किसी पीड़िता के साथ, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ दहेज की वजह से हो। जो घर में पीड़िताओं के साथ जो वायलेंस होती है वो किसी भी वजह से हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पति है, अगर वो अपनी पत्नी को और उसके बच्चों को, अपने बच्चों को अगर वो उनको मेंटेन नहीं कर रहा है फाइनेंशियली, अगर बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे रहा है, या बच्चों के डे टू डे खर्चों के लिए पैसे नहीं दे रहा है, तो दैट ऑल्सो इज अ काइंड दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. The person may not get punished under section 498 A IPC because टेक्निकल जो डेफिनेशन है, जो क्योंकि जो डेफिनेशन ऑफ क्रूअल्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 498 डील्स विद क्रूअल्टी ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीड़िता के साथ कुछ हुआ नहीं है. पीड़िता के साथ डोमेस्टिक वायलेंस तो हुई है. अ वाइफ एंड चिल्ड्रन हु आर नॉट बीइंग मेंटेन्ड by the father or by the husband, they are suffering domestic violence, right? तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि जैसे जैसे समाज में कोई ऐसी चीज आती है जो एग्जिस्टिंग, जो कि एक सेपरेट नहीं है, तो नया कानून बनाना पड़ता है. सिमिलरली, डोमेस्टिक घरेलू हिंसा से डील करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट नहीं था 2005 के पहले. इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इनेक्ट किया गया. ये जो एक्ट है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. ये पूरी इंडिया में लागू है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड इस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया गया है. ये बताया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं. अगर किसी पीड़िता के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो उसके पास क्या रेमेडी है, कौन सी कोर्ट में उसका निवारण हो सकता है, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारा जो है, ये एक्ट में, मैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को शॉर्ट में डीवी एक्ट कहकर के संबोधित कर रही हूँ. तो ये डीवी एक्ट में डीवी एक्ट में इन सारी चीजों का प्रावधान है. आगे बढ़ने से पहले दो तीन और चीजें हम इस एक्ट के बारे में पहले क्लियर कर लेते हैं. सबसे पहली चीज तो ये कि इस एक्ट के अंडर जो विक्टिम है, यानी जो कंप्लेंट फाइल कर सकता है इस एक्ट के अंडर, वो है एक फीमेल. which basically means that a male person cannot be the complainant under this particular act. जो इस एक्ट के अंडर जो कंप्लेनेंट है, यानी जो व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है इस एक्ट के अंतर्गत, वो एक फीमेल ही हो सकती है. सवाल ये उठता है कि कौन सी फीमेल? एज अंडरस्टूड फ्रॉम द नेम ऑफ द एक्ट इटसेल्फ, वो फीमेल होगी जिसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुई है. अब डोमेस्टिक वायलेंस की क्या डेफिनेशन है लॉ में? चूंकि ये एड ऑन कोर्स है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ के पार्टिसिपेंट्स हैं सेशन में, दे आर नॉन लॉ स्टूडेंट्स. तो नॉन लॉ स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए मैं ये चीज बता देती हूँ कि लॉ में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर ऑल, जो लॉ होता है वो लोगों की राइट्स डिफाइन करता है, लोगों की ड्यूटीज डिफाइन करता है. लॉ ये भी डिटरमिन करता है किसी ने कोई प्रोविजन वायलेट किया है, कौन सा एक्ट वायलेशन माना जाता है, कोई वायलेशन किया है तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी. कि लॉ ये इतनी के साथ जनरली डील करता है, इसीलिए लॉ में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अब जैसा कि मैं कह रही थी, मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि इस एक्ट के अंतर्गत जो शिकायत करनी हो सकती है, दिस एक्ट is meant for the protection of females, therefore the complainant can only be a female. That's number one. Number two, इस सवाल ये होता है, तो वो फीमेल जिसके, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तो ऑब्वियसली कंप्लेनेंट वो फीमेल होगी जिसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुई है. डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन पे हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे. तीसरा, अब इट इज नॉट इनफ कि किसी लेडी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई हो, जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट फाइल कर रही है उसके साथ इस लड़की की यानी कंप्लेनेंट की एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप? इस डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब a relationship between two persons
who are living or at any point of time have lived together as members of a family. मैं बिल्कुल आपको, वैसे तो जो डेफिनेशन है वो थोड़ी और टेक्निकल है, पर बिल्कुल मोटे मोटे अंदाज में आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कंप्लेनेंट जो कि फीमेल ही हो सकती है, कंप्लेनेंट उस व्यक्ति के खिलाफ इस एक्ट के अंतर्गत केस फाइल कर सकती है जिसके साथ वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, डोमेस्टिक रिलेशनशिप वो मतलब ऐसा कि शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ वो कंप्लेन फाइल कर रही है यानी रिस्पोंडेंट, वो कभी ना कभी या तो ऑलरेडी साथ में रह रहे हैं एज मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, या एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो एज मेंबर्स ऑफ अ फैमिली साथ में रहे हैं। तो ये हो गई डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन। अब आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैरिड लड़की है, अब शी क्लेम्स दैट शी इज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब उसका ये कहना है कि भाई मैं जो कंप्लेंट है वो अपने पति, सास ससुर और से फॉर एग्जांपल कोई उसकी शादीशुदा ननद है, अज्यूमिंग कि उसको शी क्लेम्स कि वो इन तीनों चारों लोगों ने उसके साथ किसी प्रकार की कोई डोमेस्टिक वायलेंस करी है, तो शी वांट्स टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट ऑल 3 और 4 ऑफ दीज पीपल। लेकिन जो वो वहां रहती नहीं है उसके साथ ससुराल में, क्योंकि वो शादीशुदा है, वो आती जाती रहती है, क्योंकि वो तो जनरली अपने ससुराल में रहती है बट अपने मायके आती जाती रहती है। नाउ इस लेडी के साथ हमारी इस कंप्लेनेंट की डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दे आर नॉट लिविंग टुगेदर एज मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। विजिटिंग रिलेशंस, इन अदर वर्ड्स, जो विजिटिंग रिलेशंस होते हैं वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में काउंट नहीं होते। अब अनदर एग्जांपल, जैसे किसी पीड़िता का ये कहना है कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ और मेरे सास ससुर या मेरे पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, मुझे गाली गलौज करते हैं या मारते पीटते हैं या जो भी है। उसका ये भी कहना है कि भाई हमारी पड़ोस में जो रहता है वो भी मेरे पति का बहुत साथ देता है और उसका हमारे घर में आना जाना है और वो भी इनका साथ देता है, वो इनको भड़काता है और वो भी मेरे साथ गाली गलौज करता है। लेकिन हमारी जो पीड़िता है इस एग्जाम्पल में, वो अपने ससुराल, अपने पति और सास ससुर के खिलाफ तो कंप्लेन फाइल कर सकती है, लेकिन इस पड़ोसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं फाइल कर सकती, क्योंकि शी इज नॉट हैविंग अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद दिस नेबर। एंड व्हाई इज शी नॉट हैविंग अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप? बिकॉज शी इज नॉट लिविंग टुगेदर विद हिम एज मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो ये चीज हमारे लिए समझना थोड़ा सा जरूरी है ना। तो अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जस्ट टू रिकैपिटुलेट, इस एक्ट के अंतर्गत या इस कानून के अंतर्गत जो शिकायत करता है वो नंबर 1 एक फीमेल होती है। कैसी फीमेल होती है? वो फीमेल जिसके साथ वो फीमेल, और इन अदर वर्ड्स फीमेल जो फीमेल है वो उसके या पीड़िता जो है वो उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकती है जिसके साथ उसकी कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है, दैट नाउ वी हैव अंडरस्टूड। हालांकि जो डेफिनेशन है लीगली तो थोड़ी सी और टेक्निकल है, बट उतने में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सो आई विल लिमिट माई सेल्फ टू दिस ब्रॉड एंड जनरल डेफिनेशन। तीसरी चीज ये है कि ये जरूरी नहीं है कि वो जिसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, यानी जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन फाइल करी है और जिसके साथ शी इज लिविंग एज मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि दिस इज नॉट रेलिवेंट कि वो जो घर है वो किसका है। इट इज पॉसिबल कि जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन फाइल, जैसे फॉर एग्जांपल उसने पति और सास ससुर के खिलाफ कंप्लेन फाइल की, नो, इट इज पॉसिबल कि वो जो जिस घर में रहती है वो एक रेंटेड प्रीमाइसेस है, या ये भी हो सकता है कि वो मकान है वो पति का नहीं है, सास या ससुर में से किसी एक के नाम पे, बट दैट इज इररेलेवेंट। ठीक है, तो ये हो गई एक तो हमारी मोटी मोटी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बताना चाहूंगी वो ये है कि इस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट even females who are living in a live-in relationship can claim reliefs under this act। जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन है अंडर डीवी एक्ट वो ये है कि जो relationship between two persons who are living together as members of a family and who are either related by consanguinity or marriage or through a relationship in the nature of marriage।
तो इसका मतलब ये हुआ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, सी इफ जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम उसे ऐसे ही डिफाइन, तो उसको डिफाइन करने का जो एक तरीका है वो ये है कि इट इज अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, एंड दिस इज अ लीगल डेफिनेशन ऑफ कोर्स, बट इन लॉ दिस इज हाउ the a live-in relationship has been defined, and in fact the live-in relationship has अगर हम इनफैक्ट डीवी एक्ट को भी देखेंगे तो इट डजंट यूज द टर्म लिव इन रिलेशनशिप, इट सेज रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट दिस इज द ओनली एक्ट which recognizes or a live in relationship in the sense कि वो इसको लीगल सैंक्टिटी तो नहीं देता, बट हाँ अगर किसी लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई फीमेल है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो वो भी इस एक्ट के अंतर्गत अपने लिए रिलीफ क्लेम कर सकती है। रिलीफ मतलब वो अपने लिए कुछ प्रोटेक्शन क्लेम कर सकती है। अब ये तो हो गया हमारा डोमेस्टिक, ये तो हो गई हमारी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन। अच्छा, अभी चूंकि मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए वो मैरिड औरतों के थे, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं शायद ये लग रहा होगा कि ये मैरिड औरतों के प्रोटेक्शन के लिए, बट दैट इज नॉट ट्रू। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पीड़िता जो कंप्लेनेंट है उसका फीमेल होना जरूरी है, पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जो कंप्लेनेंट है वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा अगर किसी कोई लड़की है जिसका जो अपने भाइयों के साथ रहती है या और पिता के साथ रहती है, और उसका ये कहना है कि ये जो भाई या पिता है वो इसके साथ किसी प्रकार की डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, या जैसे उसे मारते पीटते हैं या उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते बिल्कुल भी, और जब और उसके साथ मारपीट करते हैं या डेली बेसिस पे गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये जो लड़की है ये भी अपने फादर या ब्रदर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल कर सकती है। एक और इम्पोर्टेंट, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसके खिलाफ, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल मैंडेटरी है कि जो कंप्लेनेंट है वो फीमेल ही होनी चाहिए, लेकिन जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जा रही है वो जरूरी नहीं है कि वो मेल ही हो, वो फीमेल भी हो सकता है। तो जैसे अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, अगर किसी लड़की का ये कहना है कि मेरे भाई भाभी दोनों मिलकर के मुझे परेशान करते हैं, लड़की और मेरे साथ गाली गलौज करते हैं या मेरे साथ मारपीट करते हैं या किसी प्रकार की डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो भाभी भाई के खिलाफ तो वो कंप्लेंट फाइल कर ही सकती है, भाभी के खिलाफ भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। सिमिलरली अगर कोई शादीशुदा औरत है तो वो अपनी सास के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, अपनी किसी अनमैरिड ननद के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है जो उसी घर में रहती है, या ऐसी मैरिड ननद के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकती है जो इज हु इज प्रोबेबली सेपरेटेड एंड लिविंग विद हर इन द मैट्रिमोनियल हाउस इटसेल्फ। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दी हैं फॉर द सेक ऑफ प्रिवेंटिंग एनी कंफ्यूजन। मैट्रिमोनियल हाउस मतलब, लॉ में मैट्रिमोनियल हाउस का मतलब होता है ससुराल, और मैटरनल या पेटर्नल हाउस का मतलब होता है मायका। तो अगर मैं आगे मैट्रिमोनियल हाउस या मैटरनल हाउस का अगर इस्तेमाल करूं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो आई जस्ट थॉट आई विल क्लैरिफाई दिस थिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, किसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। अंडर दिस एक्ट जिसके खिलाफ कंप्लेनेंट कंप्लेंट फाइल करती है उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि डोमेस्टिक वायलेंस, किसी पीड़िता के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, ठीक है, उसने कंप्लेंट फाइल कर दी, उसको एक्ट, उसे लॉ का पता था, उसने कंप्लेंट फाइल कर दी, लेकिन अब आगे होगा क्या, उससे क्या फायदा होगा उसे, व्हाट इज द एडवांटेज। मैं आपको पहले कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है यानी घरेलू हिंसा, इस अधिनियम के अंतर्गत जो डोमेस्टिक वायलेंस है इट इज नॉट एन ऑफेंस एज सच, यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो एक अपराध नहीं है, सेपरेट इंडिपेंडेंट अपराध नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी पीड़िता के साथ हुई है तो वो इस एक्ट के अंडर, इस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट से अपने लिए कुछ प्रोटेक्शंस मांग सकती है। तो even though domestic violence is not a separate offense, this particular act entitles the female victims of domestic violence to claim certain reliefs। reliefs को आप यूं समझे protections, है ना, या कुछ हक फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, तो
ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप क्लैरिफाई करनी जरूरी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट एन ऑफेंस एज सच, तो अब और मैंने आपसे ये भी कहा कि लेकिन रिलीफ क्लेम किए जा सकते हैं। तो क्या है वो रिलीफ जो कि डोमेस्टिक वायलेंस अंतर्गत क्लेम किए जा सकते हैं? तो ब्रॉडली इस एक्ट के अंदर 4 या 5 कैटेगरीज के रिलीफ हैं जो क्लेम किए जा सकते हैं। सबसे पहला तो है प्रोटेक्शन ऑर्डर, नंबर 2 होता है रेजिडेंस ऑर्डर, नंबर 3 होता है मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ में मुआवजा भी हो सकता है और मेंटेनेंस यानी जिसको हिंदी में भत्ता कहते हैं वो भी हो सकता है। फिर होते हैं कस्टडी ऑर्डर्स, यानी बच्चों की कस्टडी के ऑर्डर्स। तो ब्रॉडली ये 4 कैटेगरीज हैं रिलीफ की जो इस एक्ट के अंतर्गत क्लेम की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज रिलीफ्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेंटेनेंस ऑर्डर से। एक्चुअली द रीजन मैं मेंटेनेंस मॉनेटरी रिलीफ से शुरू कर रही हूँ, मॉनेटरी रिलीफ में कंपनसेशन भी आता है और मेंटेनेंस भी आता है। द रीजन मैं मॉनेटरी रिलीफ से शुरू कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि कोर्ट्स में जो सबसे ज्यादा रिलीफ क्लेम किया जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत वो यही होता है। अब मेंटेनेंस क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई लड़की ये कहती है कि मैं शादीशुदा, मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चों का खर्चा पानी नहीं देते हैं, उनकी स्कूल की फीस नहीं पे करते हैं, एंड दिस इज व्हेन ही इज वर्किंग। देखिए, अगर कोई इंसान अनएम्प्लॉयड है और इस वजह से वो कुछ वो अपनी फैमिली का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। बट जैसे अगर लड़की का ये कहना हो कि उसके पति के पास सोर्सेज हैं इनकम के, लेकिन उसके बावजूद वो अपना अपने पति को ना अपने वाइफ को मेंटेन कर रहा है, ना अपने बच्चों की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो एक मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट से प्राप्त कर सकती है। उस केस में क्या होता है कि कोर्ट जनरली इस तरह का ऑर्डर कर देती है, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम ऑफ द पार्टीज। कोर्ट इन सिचुएशंस में कोर्ट एक एफिडेविट ऑफ इनकम मंगवाती है, कंप्लेनेंट से भी मंगवाती है, जिसके खिलाफ से भी मंगवाती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एफिडेविट्स कोर्ट एक मेंटेनेंस ऑर्डर पास करती है। तो कोर्ट्स में जो सबसे ज्यादा जो देखा गया है महिला कोर्ट्स में, महिला कोर्ट्स यानी वो कोर्ट्स जहाँ पे डीवी के केसेस चलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केसेस, जो सबसे ज्यादा जो क्लेम किए गए हैं वो यही है। जो सबसे ज्यादा रिलीफ क्लेम किया गया है वो मेंटेनेंस का रिलीफ ही है। दूसरा होता है कंपनसेशन का रिलीफ। कंपनसेशन का रिलीफ लेकिन जनरली जब केस खत्म हो जाता है उसी वक्त उस टाइम पर ही जनरली अवॉर्ड किया जाता है। कंपनसेशन का क्या मतलब हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की का ये कहना है कि उसके पति ने डोमेस्टिक वायलेंस करते हुए उसकी बहुत सारी चीजों का नुकसान कर दिया, या जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी ज्वेलरी मिस अप्रोप्रिएट कर दी, या उसको उसकी ज्वेलरी से डिप्राइव कर दिया, and if she can produce those bills and she knows कि what is कि वो कितने पैसों की ज्वेलरी थी, तो उस सिचुएशन में she can claim compensation। compensation मतलब मुआवजा। सिमिलरली अगर किसी लड़की का ये कहना है कि अपने पति की घरेलू हिंसा की वजह से कई दफा उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उसका हॉस्पिटल इलाज पे दवा दारू पे काफी खर्चा हुआ है, तो वो इस चीज के लिए भी कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मुआवजे का जो रिलीफ होता है वो जनरली केस जब खत्म हो जाता है तब दिया जाता है। इसके अलावा जो एक और रिलीफ है जो बहुत ही ज्यादा कोर्ट्स में इन्वोक किया जाता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर को मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी पीड़िता का ये कहना है कि उसके पति ने उसे, फॉर एग्जांपल उसका ये कहना है कि भाई मेरे पति ने, और जहां पे वो जॉब करती है वहां रोज आकर के उसे डराता धमकाता है, तमाशा क्रिएट करता है उसके वर्क प्लेस पे आकर के, और उसे धमकी देता है, उससे कहता है कि उसे ठीक से काम नहीं करने देगा। अब ऐसी सिचुएशन में लड़की क्या करे? पति के साथ तो वो ऑलरेडी नहीं रह रही है, वहां से तो उसको निकाल ही दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने वर्क प्लेस पे एक हरासमेंट सफर कर रही है,
at the hands of the husband. तो इस सिचुएशन में वो कोर्ट से फिर निकाल दिया था। ऐसी सिचुएशन में वो कोर्ट से एक प्रोटेक्शन ऑर्डर क्लेम कर सकती है, या रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर क्लेम कर सकती है क्वा द हस्बैंड। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर। इसी प्रकार से अगर किसी लड़की का ये कहना है कि भाई जो मेरी ज्वेलरी कि मेरी जो ज्वेलरी है वो मेरे घर में पड़ी हुई है, वो मेरे ससुराल में है, जैसे कोई लड़की ये कहे कि मेरे पति ने मुझे घरेलू हिंसा करके घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आज भी उसकी जो ज्वेलरी है वो वहीं पड़ी हुई है, लेकिन उसे ये भी पता चला है कि उसका हस्बैंड उसको डिस्पोज ऑफ करने के चक्कर में है, तो उस सिचुएशन में वो अपनी उस मूवेबल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोर्ट से एक ऑर्डर प्राप्त कर सकती है। सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर। या जैसे अगर किसी लड़की का ये कहना है कि घर से निकाले जाने के बावजूद उसका हस्बैंड उसे रात को फोन करता है और टेलीफोनिकली उसे हरास कर रहा है बाय कॉलिंग हर एट ऑड आवर्स, तो उस सिचुएशन में भी वो कोर्ट से अपने लिए एक ऑर्डर प्राप्त कर सकती है। तो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर। जो तीसरा जो कैटेगरी ऑफ रिलीफ हुआ वो हो गया रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर का भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे लड़की का ये कहना है कि जो हस्बैंड है वो बार बार उसे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। जैसे अगर किसी पीड़िता का ये कहना है कि उसका हस्बैंड उसके साथ घरेलू हिंसा करता है या सास ससुर घरेलू हिंसा करते हैं और उसे बार बार घर से निकालने की धमकी देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर स्पेशली उसके पास और कहीं जाने के लिए नहीं है, शी कैन नॉट गो बैक टू हर पेरेंटल हाउस यानी हर मायका, और उसके पास और कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए, तो उस सिचुएशन में वो कोर्ट से ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं कि उसे उसके घर से कि उसे उसके ससुराल में से न निकालना चाहिए। तो ये हो गया वन फॉर्म ऑफ रेजिडेंस ऑर्डर। कई बार कोर्ट ये डायरेक्शन भी देती है कि जैसे अगर सपोज जो लड़की है, कोई लड़की है जो अपने बच्चों के साथ अपने 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 पति और बच्चों के साथ अपने घर में रहती है, लेकिन उसका पति रोज उसके साथ घरेलू हिंसा करता है और एज ए रिजल्ट ऑफ विच शी सफरिंग अक्यूट मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। उस सिचुएशन में वो कोर्ट में ये दरखास्त भी लगा सकती है कि कोर्ट उस घरेलू हिंसा से उसको बचाने के लिए उसके हस्बैंड को उस प्रॉपर्टी में से इविक्ट करे। तो इस तरह का ऑर्डर भी अप्रोप्रिएट केसेस में कोर्ट पास कर सकती है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि कोई लड़की ये कहे कि जो घर है वो उसके पति का है जिस घर में वो रहती है, लेकिन पति सिंपली उसे बेदखल करने के लिए ताकि वो उस घर में ना रह सके उस घर को बेचना चाहता है, जस्ट सो दैट ही कैन इविक्ट हर। उस सिचुएशन में जो पीड़िता है वो कोर्ट से ये ऑर्डर भी प्राप्त कर सकती है कि कोर्ट उसके पति को उस प्रॉपर्टी को बेचने से रोके। सो दीज आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ रेजिडेंस ऑर्डर्स दैट आई हैव गिवन यू। एक जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जो भी ये रिलीफ भी बहुत फ्रीक्वेंटली कोर्ट्स में इन्वोक किया जाता है, वो होता है कस्टडी ऑर्डर का। अब जैसे कई बार ऐसा होता है घरेलू हिंसा के केसेस में देखा गया है कि जो पीड़िता है उसके बच्चे उसके पास नहीं होते, उसका ये कहना ग्रीवेंस उसकी ये एलिगेशन होती है कि जो हस्बैंड है उसने उसे घर से तो बाहर निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल कि घर से बाहर निकाल दिया लेकिन बच्चे अपने पास ही रख लिए। अब जहां बच्चा बहुत छोटा है, कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ महीनों का बच्चा है, उस सिचुएशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ द मदर एंड द चाइल्ड टू बी विदाउट ईच अदर। तो उस सिचुएशन में इस अधिनियम के अंतर्गत वो जो पीड़िता है वो एक टेम्पररी कस्टडी ऑर्डर भी, यानी बच्चे की कस्टडी को प्राप्त करने के लिए भी ऑर्डर कोर्ट से क्लेम कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की है वो ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ टेम्पररी कस्टडी ऑर्डर ही प्राप्त किया जा सकता है। परमानेंट कस्टडी का ऑर्डर, और टेम्पररी कस्टडी का मतलब जब तक कि मैटर खत्म नहीं हो जाता उस कोर्ट में, सिर्फ टेम्पररी कस्टडी का ऑर्डर ही प्राप्त किया जा सकता है। परमानेंट कस्टडी का ऑर्डर इस एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसके लिए सेपरेटली गार्डियनशिप कोर्ट में केस फाइल करना। तो ये तो हो गए जो रिलीफ्स हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत क्लेम किए जा सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। हमने ये समझ लिया कि कंप्लेनेंट कौन है, हमने ये समझ लिया कि किसके खिलाफ कंप्लेनेंट कंप्लेंट फाइल कर सकती है, हमने ये भी समझ लिया कि डोमेस्टिक वायलेंस पर से इज नॉट एन ऑफेंस अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ, बट इट एंटाइटल्स द विक्टिम टू क्लेम सर्टेन प्रोटेक्शंस और रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। ये चीज भी हमें समझ में आ गई।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस ही नहीं की कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। घरेलू हिंसा हम सबको पता है कि घरेलू हिंसा हाँ होती है, लेकिन आमतौर पे हम घरेलू हिंसा को किस चीज से एसोसिएट करते हैं? मार पिटाई से, फिजिकल टॉर्चर से। इनफैक्ट अभी मैं चैट बॉक्स पे एक बच्चे का सवाल भी देख रही थी कि इज मेंटल टॉर्चर इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? द आंसर इज अ रिजाउंडिंग यस। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन देखें इस एक्ट के अंदर, तो डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ही ब्रॉडली इस अधिनियम के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल अब्यूज यानी मार पिटाई भी इंक्लूडेड है, वर्बल और इमोशनल अब्यूज भी इंक्लूडेड है। वर्बल अब्यूज जैसे कि गाली गलौज करना, और इमोशनल अब्यूज भी इंक्लूडेड है। और किस प्रकार के इमोशनल अब्यूज? जैसे ह्यूमिलिएशन करना किसी का। जैसे कई दफा हम ऐसे कोर्ट में केसेस देखते हैं कि पीड़िता का ये कहना होता है कि उसका हस्बैंड उसे सिर्फ उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से उसे कॉन्स्टेंटली पब्लिकली एंड प्राइवेटली ह्यूमिलिएट करता है। नो, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। या किसी या कई दफा या फिर कई दफा पीड़िता का ये कहना होता है कि उसका हस्बैंड या उसके इन-लॉज उसे सिर्फ सिंपली बिकॉज कि शी कम्स फ्रॉम अ फाइनेंशियली वीक फैमिली, या उसका मायका फाइनेंशियली वीक है, उसकी वजह से उसे कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएट करते हैं। नाउ दैट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स वर्बल और इमोशनल अब्यूज, और ये भी डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। सिमिलरली डोमेस्टिक वायलेंस कुड आल्सो बी सेक्सुअल अब्यूज एंड इट कुड आल्सो बी इकोनॉमिक अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज का मैं एग्जांपल आप लोगों को शुरुआत में ही दे चुकी हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पीड़िता है जिसका ये कहना है कि उसका हस्बैंड जो कि जिसकी अच्छी सोर्सेज ऑफ इनकम है और इसके बावजूद ना तो वो उसे मेंटेन कर रहा है ना उसके बच्चों को मेंटेन कर रहा है, उनका डे टू डे का जो एक्सपेंसेस है डिस्पाइट हैविंग द सोर्स ऑफ इनकम, ही इज शाइंग अवे फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दैट वुड आल्सो बी इंक्लूडेड विद इन the term of economic abuse, and economic abuse is also domestic violence. तो कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वो बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है। उसमें ना केवल मारपीट यानी फिजिकल अब्यूज, बल्कि वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज में मेंटल टॉर्चर ऑफ कोर्स इंक्लूड हो जाएगा, इकोनॉमिक अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज भी इंक्लूडेड है। तो मोटा मोटा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में जो है वो मैंने आप, बाकी तो इस एक्ट में और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जनरल लेवल पे उनकी डिटेल जानकारी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल। हाँ, कि आप इस चीज को याद रखें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 it was the first statute in India to consider the aspect of relationship to consider the aspect of live-in relationship. And how so? Because it talks about relationship in, तो ये एक इम्पोर्टेंट। बाकी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत जो बाकी सेलियंट फीचर्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। इसके अलावा हम आ जाते हैं अब विमेन रिलेटेड लॉज पे। विमेन रिलेटेड लॉज, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हमारा एक जनरल स्टैट्यूट है या ज्यादा जनरल आपराधिक कानून है यानी इंडियन पीनल कोड, जिसके अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस डिफाइंड हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चूंकि घरेलू हिंसा से डील करने के लिए इंडियन पीनल कोड में कोई प्रोविजन नहीं था, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया। लेकिन इंडियन पीनल कोड में ही काफी स्पेसिफिकली फीमेल रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द वेरियस ऑफेंसेस पर्टेनिंग टू सेक्सुअल असॉल्ट आर हैव बीन डिफाइंड एज ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड। रेप के बारे में तो की जो ऑफेंस है उसके बारे में तो सबको ऑलरेडी पता है, तो लेट्स नॉट टच अपॉन दैट। बट अपार्ट फ्रॉम रेप भी सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। जैसे अगर कोई लड़की सड़क पे चल रही है और उसके साथ कैट कॉलिंग हो रही है, जियरिंग हो रही है, भद्दे भद्दे गाने गाए जा रहे हैं, ईव टीजिंग हो रही है। नाउ obviously this does not constitute rape, but it is also an offense only. It outrages the modesty of a woman, right? तो इसीलिए देयर इज सेक्शन इंडियन पीनल कोड में एक सेक्शन 509 है जो कि डिफाइन करता है which basically penalizes any word, sound or gesture
which is meant to outrage the modesty of a woman. तो जब आप सब लोग आई एम अज्यूमिंग कि ईव टीजिंग के कॉन्सेप्ट के साथ फेमिलियर है, तो ईव टीजिंग जो है इट इज एन ऑफेंस. ईव टीजिंग इज वुड the acts of eve teasing would be penalized under section 509 of the IPC. हालांकि ईव टीजिंग ऑफेंस का नाम नहीं है सेक्शन 509 में, बट ईव टीजिंग जो होती है वो सेक्शन 509 आईपीसी में पनिशेबल है. इसके अलावा अब ये तो हो गया words, sounds and gestures which are meant to outrage the modesty of a woman. What if कई दफा ऐसा भी होता है कि टचिंग होती है ऑफ अ फीमेल. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की चल रही है और उसके साथ उसका दुपट्टा खींचा जा रहा है इनअप्रोप्रिएटली टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, है ना, या देयर इज और शी इज बीइंग टच्ड इनअप्रोप्रिएटली. हम सब जानते हैं ये अकरेंसेस बहुत कॉमन है, पब्लिक प्लेसेस में ये बहुत होती है. जस्ट लाइक ईव टीजिंग इज वेरी कॉमन for females who travel in buses and autos and trains. Even these are very common occurrences. It is a sad state of affairs, but it's true. तो इस तरह की जो occurrences होती हैं, which involves some sort of inappropriate touching of a woman, उनको भी penalize करने के लिए इंडियन पीनल कोड में एक स्पेसिफिक सेक्शन है विच इज सेक्शन 354 आईपीसी, विच इज द ऑफेंस which basically penalizes outraging of the modesty of a woman. इसके अलावा 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके अंतर्गत पीनल कोड में काफी सारे नए ऑफेंसेस क्रिएट किए गए थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल होती है, आई एम अज्यूमिंग आप सबको पता होगा कि यू आर ऑल फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉकिंग. स्टॉकिंग पहले एक सेपरेट ऑफेंस नहीं था इंडियन पीनल कोड में, एंड देयर वाज it was not stringently punished. At most it could be covered under section 509 IPC, पर 509 IPC में penalty काफी कम है. And stalking is again a very very common occurrence. तो 2013 में जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था तो कुछ और स्पेसिफिक ऑफेंसेस डिफाइन किए गए थे इंडियन पीनल कोड में. उनमें से एक है स्टॉकिंग. सेक्शन 354 ए से लेकर के सेक्शन 354 डी तक नए ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए थे, जैसा कि मैं आपको बता रही थी. और जो सेक्शन 354 डी है, इट penalizes stalking. Stalking is now a separate offense under the Indian Penal Code and it is punished very very stringently. Similarly, disrobing of a woman has also now been made a separate offense. Disrobing of a woman पहले भी किसी offense में cover हो जाता under Indian Penal Code, but in order to punish it more stringently, a separate specific offense of disrobing of a woman was also created by the Criminal Law Amendment Act of 2013, and that is section 354B. इसके अलावा voyeurism is also a very common occurrence. तो उसे penalize करने के लिए section 354C introduce किया गया था Indian Penal Code में, and that is again punished very stringently. इसके अलावा सेक्शन 354A भी 354A also penalizes certain acts. ये भी 2013 के अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था. सो कहने का मतलब ये कि इंडियन पीनल कोड में भी काफी सारे प्रोविजंस हैं जो फीमेल सेंट्रिक हैं, which penalize certain offenses which are specifically related to women. इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट भी है, which आप सब लोगों को मालूम होगा कि sexual harassment of females at workplace is also a very frequent occurrence. Problem actually सारे sexual offenses और in fact most of the sexual offenses के साथ ये होती है कि वो बंद कमरों में होते हैं, तो वो कई दफा पता नहीं चल पाते. तो harassment of females at workplace is also a very very common occurrence. It's just that लोग जनरली फीमेल्स इस चीज के बारे में जनरली कंप्लेन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरली फीमेल्स को होता है बदनामी का डर, फीमेल्स और उनके घर वालों को. मोर इम्पोर्टेंटली इसलिए भी फीमेल्स कई दफा कंप्लेन नहीं करती क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज देयर जॉब. और तीसरी चीज ये कि पहले कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं होता था वर्क प्लेसेस में इस ग्रीवेंस के साथ डील करने के लिए. तो एक बहुत जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान,
जब ये एक्ट, जब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक्ट इन फोर्स नहीं था, उस टाइम पे ये एक जजमेंट थी जिसमें काफी सारे गाइडलाइंस ले डाउन किए गए थे. अब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक स्पेसिफिक एक्ट भी है, जो कि एक फोरम प्रोवाइड करता है हर एज पर रूल्स. जो भी जो एस्टैब्लिशमेंट्स जो होती हैं, दे आर सपोज टू एस्टैब्लिश अ प्रोसीजर वेर इन कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कैन बी फाइल्ड एंड दे कैन बी एंटरटेन एंड हैंडल्ड. सो आशीष जी, आशीष जी, Yeah, आशीष जी, uh, हाय. yeah. I think I've covered Uh, Domestic Violence Act because I know this is a gathering of non-law students, so I have not dwelt too much on the individual yes. provision, but I have mostly touched upon all of the acts or the female-related जो specific statutes हैं. I think now we can take up some question. Yes. Yes. Let me. इसमें एक सवाल था किसी बच्चे का कि इज मेंटल टॉर्चर इंक्लूडेड, तो उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है, इट इंक्लूड्स वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, सो दैट सॉरी मेंटल टॉर्चर. सो उस सवाल का जवाब तो मैंने दे ही दिया है. एक किसी बच्चे का ये भी सवाल था कि व्हाट इफ फीमेल इज मोर इकोनॉमिकली स्टेबल देन मेल. अब ये ना बहुत ही वेग तो नहीं कहूंगी, बट थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड सवाल इसलिए है कि फीमेल अगर इकोनॉमिकली अगर स्टेबल हो भी, तो भी जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इट वुड ऑलवेज डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे मैं आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ओनली. जैसे फॉर एग्जांपल पति पत्नी है. अब पत्नी ने लेट्स अज्यूम कि सिर्फ पति के खिलाफ कोई डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल करी है और उसका ये कहना है कि मेरा हस्बैंड मुझे मेंटेन नहीं करता, है ना. ऑफ कोर्स शी कैन, इट इज हर राइट टू क्लेम मेंटेनेंस. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, लॉ में कभी भी कोई भी रिलीफ सिर्फ एक पार्टी के कहने से नहीं दिया जाता. अगर कोई एक पार्टी रिलीफ क्लेम करती तो दूसरी पार्टी से भी जवाब मांगती है कोर्ट, और दोनों के जवाब को असेस करने के बाद ही कोई डिसीजन देती है. तो यस, अगर कोई फीमेल है अगर पति, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था पति पत्नी का, इफ द फीमेल इज क्लेमिंग मेंटेनेंस बट शी हैज हर ओन सोर्स ऑफ इनकम, देन द कोर्ट कैन डिक्लाइन मेंटेनेंस टू हर. पर इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो बाकी के जो रिलीफ्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन ऑर्डर या रेजिडेंस ऑर्डर, वो उसको नहीं मिल सकता. डिपेंडिंग अपॉन हर सिचुएशन शी कैन क्लेम द अदर रिलीफ्स. बट यस, where the female is having her own sources of income, and she is claiming maintenance, the court can in appropriate cases decline maintenance. There's a very interesting question. One student has asked, Mr. Gauri Shankar. He asked if a victim is mentally retarded, 10% mentally retarded, can she still be considered as a victim of domestic violence? So is there's something to do with mental retardation? So can those victims be still covered? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. Okay. Another person, Mr. Pranad. अगर कोई विक्टिम मेंटली रिटार्डेड, तो उसके साथ भी तो मार पिटाई हो सकती है, और मार पिटाई तो डोमेस्टिक वायलेंस में ही मानी जाएगी, चाहे मेंटली रिटार्डेड हो या ना हो. कहने का मतलब ये हुआ कि मेंटल कैपेसिटी से डोमेस्टिक वायलेंस का कोई लेना देना नहीं है. राइट. अच्छा, what is if he says, one Mr. Pranad Jain has asked, if the female itself herself is more economically stable than male, will she? I just answered that question. Yes. Then there is another one. How sexual abuse is involved in domestic violence? Is marital rape considered a sexual abuse? Can you elaborate? Okay, so marital rape, see, there can be an first of all, I'll just clarify the position. जो marital rape है, it is not an offense under IPC. Now there is regarding why or why not, but this is not the forum to discuss that. Okay, marital rape is not an offense under IPC, but according to me,
it can constitute domestic violence under the Domestic Violence Act. But जैसा कि मैंने आपसे कहा था, Domestic Violence Act per se is not an offense under this particular act. It only entitles the victim to claim certain reliefs. So अगर किसी victim का ये कहना है कि मेरे साथ कोई physical abuse नहीं है, कोई verbal abuse नहीं है, पर मेरे साथ sexual abuse है in the form of marital rape, she is a victim and she can claim reliefs under the Domestic Violence Act. Okay. There is another question. Is there any age limit for filing the complaint? No. So even a 5-year-old kid can file? She can file through the guardian. Okay. I'll take one more question. It says if any person transferred all his property to his wife, then wife wants to take divorce, then what will happen? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी सिचुएशन भाई ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि उसने कौन किसी पति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दी या विल कर दी या व्हाटएवर इट इज बट कोई पति अपनी पत्नी के फेवर में सारी प्रॉपर्टी कर दे, लेकिन ये उससे ये साबित नहीं हो जाता राइट एंड वो अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकता, राइट? तो दोज आर कंप्लीटली टू डिफरेंट सिचुएशंस. बट अब किस सर्कमस्टेंसेस में पति के साथ घर बैठे ये तो इट इज डिफिकल्ट टू से. Yeah. There's I think there are quite a few questions, but I'll take one more and then I'll end the lecture series. It's simply he asked how to prove emotional abuse. How to prove emotional abuse? Okay, Yeah. so basically in law evidence can be documentary. Now ये तो natural सी बात है कि emotional abuse का कोई documentary evidence तो नहीं हो सकता. Obviously there could be situations जैसे for example अगर कोई पीड़िता जिसने केस फाइल किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, अगर वो अपने फेवर में विटनेसेस प्रोड्यूस करती है, से इन द फॉर्म ऑफ नेबर्स who can testify to the effect that the husband humiliates her publicly, say for on account of her poor financial capacity from the side of parental family or dark complexion, and he does it on a daily basis. Now that could be, and that is obviously this is not only an example of I have also a question. but this oral testimony is could be considered sufficient for proving emotional abuse. There is a line of questions which is coming up. But I have to take another session. Yeah, I'll do one thing. I'll free you from here and I'll answer a couple of questions to which I can answer. I'm aware that you have another lecture to give. So I'll just call upon Lakshmi ma'am to give a vote of thanks. Lakshmi ma'am, are you? Yes. Thank you, Akansha ma'am. Ma'am. I want to say thank you on behalf of Vivekananda College and a medical college to guide to our students. I also want to ask one question, but you are very busy in your schedule. I will discuss my question with Ashish. Okay. Ji ma'am. Thank you so much, Akansha, for all the help. The students who want to ask some questions, they can stay back. I'll say that there was another student who has mentioned that some of the lectures were missed by students. So we are going to upload this lecture on YouTube. There is a YouTube channel, DLSA Shadra. If you want, I will put the link over here. You can subscribe to that channel. And all the lectures which are being given in the series are uploaded as soon as the lectures are done. Some of the lectures are live streamed also. I have given the link of the YouTube channel. So in case anybody has missed any lecture, you can go and watch the lecture on YouTube also. And you can also subscribe to that DLSA Shadra channel so that the notification comes in whenever there is an upload of a new lecture. Thank you, Akansha. Thank you for all your time. We're deeply obliged for your time. Thank you so much, Ashish ji, and thank you so much to the, and
big thank you to both the teacher coordinators and to all the students who are available on this virtual platform today. Thank you so much. Thank you. Yes. I'll take a few questions that I can answer. It says, can mother complain against her son under domestic offense? Yes. The answer is yes. The only requirement is that the lady, it has to be a lady to file. So even a mother can file against a son, and not only mother can also file against a daughter, and even a daughter can file against the mother. So it is even a possibility. The only requirement under the law is कि आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए, लेडी होनी चाहिए, और वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहनी होनी चाहिए अपने रिलेटिव्स के साथ. तो जरूरी नहीं है शादीशुदा हो, अनमैरिड है, उसका भाई मारता है, उसके पिता मारते हैं, उसकी माता मारती है, तो वो भी फाइल कर सकती है. नेहा प्रवीण, सेम क्वेश्चन. सेक्सुअल हरासमेंट बाय फैमिली कैन कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस? यस. आपने कहा क्या उसे रिपोर्ट करना चाहिए आईपीसी में? द आंसर इज यस. दिस इज अ क्वेश्चन बाय प्रेरणा शर्मा. There was one question where one of the persons has commented कि ये law women centric है. The answer is yes sir, ये women centric है law. मेल सेंट्रिक लॉ कोई है या नहीं है? फिलहाल तो नहीं है, राइट. तो इसको जो डोमेस्टिक वायलेंस फीमेल्स के साथ आता है उसको ध्यान में रखकर ये लॉ बनाया गया है. तो ऐसा कोई मेल प्रधान कोई अभी लॉ नहीं है जिसमें उसको कवर कर सके. लक्ष्मी मैम, आपका एक सवाल था. Yes, sir. I just want to ask you कि like जिन भी फैमिलीज में डाउरी केसेस या डोमेस्टिक वायलेंस केसेस चल रहे होते हैं, तो उनको सॉल्व करने में बहुत ही टाइम लग रहा होता है. 5-7 years द फैमिली इज इन्वॉल्विंग इन दैट पर्टिकुलर केस इमोशनली. तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उनका टाइम ड्यूरेशन कुछ फिक्स कर दिया जाए कि दैट पर्टिकुलर केस इज सॉल्व इन 1 year 2 year? हम देखिए, कानून में ऐसा कई सारे कानून में रखा गया है कि आप इनको 6 महीने में, 8 महीने में पूरा करेंगे. जैसे मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पे शायद हमारा लेक्चर अभी होना है, पता नहीं आपके साथ हमने प्लान करा है नहीं करा है. तो बहुत सारे कानून में ऐसा बोला गया कि 3 महीने में, 6 महीने में हम कंप्लीट करेंगे. लेकिन देश के अंदर अगर हम देखें, जैसे आप देखते हैं कई बार कॉलेजेस में टीचर्स कम है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं, तो Yes, sir. गवर्नमेंट आपके यहाँ पे जैसे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है कि लोग एडमिशन ही नहीं ले पाते, राइट. इवन दो यू वांट टू गिव एडमिशन, because of limitation of resources you can't give admission. Similarly, courts are overburdened with cases. तो because of lack of resources जो स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड है वो शूट कर जाता है. और इसीलिए पीछे अगर आपको ध्यान हो, अभी 3-4 दिन पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रपोज करा कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी होनी चाहिए. मतलब कि कोर्ट्स को कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये एडहॉक तरीके से नहीं, ये एक साइंटिफिक तरीके से डिसाइड हो, ताकि ये टाइम बाउंड मैनर में केसेस डिसाइड करे जा सके. तो जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स एंड बिकॉज ऑफ मेनी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, कि केस किस तरीके से चलता है. मान लीजिए एक जज साहब आज हैं, एक स्टेनो है, एक विटनेस है, एक वकील साहब है, दोनों साइड के वकील चाहिए. अब मान लीजिए जज साहब छुट्टी पे हैं या वकील साहब छुट्टी पे हैं या विटनेस नहीं आया, it delays the process. So over a period of time we are still in a process of improving ourselves. तो आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, टाइम पीरियड रखा गया है बहुत सारे कानून में, लेकिन स्टिक नहीं हो पाता है. जी. Yes, sir. मैक्सिमम टाइम लाइक फैमिली या अदर प्लेसेस पे चल रहे होते हैं, तो कभी जज अवेलेबल नहीं है, कभी सेकंड पार्टी अवेलेबल नहीं है. ड्यू टू दैट वो पर्टिकुलर थिंग जो फिनिश हो जानी चाहिए थी वो ड्रैग ऑन हो रही होती है. जी So can we do something for that? मैम, यस वी कैन डू. जो हम करते हैं, जैसे कोर्ट्स में मैं बता सकता हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि अगर गवाह आ गया तो हम उसको वापस ना भेजें. तो देखिए होता क्या है, जब हम कोई भी कानून लिखते हैं, जैसे आप कोई रूल भी बनाते हैं, तो उसको आइडियल चीजों को ध्यान में रख के करते हैं कि हर आदमी अपना काम करेगा. आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कोई लेक्चर अगर आप देने वाले हैं तो उसके बारे में पढ़ के आए, तो आपको भी मजा आएगा पढ़ाने में, बच्चों को भी मजा आएगा पढ़ने में. लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल तौर पे कई बार नहीं होता है, राइट. अब उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं, राइट. तो अब वो कारणों को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी लर्न एंड वी ट्राई टू काइंड ऑफ रूल देम आउट.
ठीक है, आप इम्पोज कर सकते हैं अटेंडेंस, जैसे आप कहते हैं कि अटेंडेंस हमें 70% चाहिए, तो आप एनफोर्स कर रहे हैं। तो ये अगर आपके पास इस तरीके का कोई सजेशन है, सुझाव है, जिससे इस परेशानी को मिटिगेट करा जा सकता है, तो वी आर मोर देन वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम टू गिव इट टू अस। ऐसा ऐसा कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, बट वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, लॉयर्स एंड ऑल। यस, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोवाइड करें कि केसेस हैंडल हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ केसेस जो हैंडल हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वी नीड मोर लॉयर्स एंड अदर फैसिलिटीज। yes, we are still हम एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी हैं, which they say that we are a young democracy। तो आज हम अपने आप को अगर अमेरिका से कंपेयर करें, तो अमेरिका गॉट फ्रीडम इन आई थिंक 1776 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनका एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहा है, एक हिस्ट्री रही है, तो हर जगह कॉपी नहीं कर सकते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तो या वी आर स्टिल गुड। There is Yes, another sir. question one by Aditi Jain. She has stated कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि husband forcing wife to have sex is not illegal. The reason why the Bombay High Court may have said that, I have not read the judgment, ma'am, is because marital rape is not identified in India. जैसे कि आकांक्षा मैम ने भी कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्यों नहीं किया उसके बारे में। देखिए, एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट हर चीज का सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। अगर मतलब लीगली स्पीकिंग बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि अभी ऐसा लॉ है। अगर इवेंचुअली लॉ कानून बदल जाता है कि मैरिटल रेप को हम इंडिया में रिकॉग्नाइज करेंगे, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ऐसा नहीं कहती। लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई लीगल टेक्निकल या कोई गलत बोला गया है, जैसे कि आपका समझना है, तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करेगा और ग्राउंड ऑफ अपील मेकआउट होंगे, तो आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू टेक इट अप। बट हर चीज, जैसे कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि हर केस को सुप्रीम कोर्ट अपने आप टेकअप करे। या एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? एक इसमें इकरा का क्वेश्चन है कि कैन मदर इन लॉ या सास अपनी बहू को घर से निकाल सकती है अपने बेटे की मौत के बाद? देखिए, नहीं, मतलब जो वो मैम ने बताया था कि आप रेजिडेंस ऑर्डर्स ले सकते हैं। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके साथ, कि उसका मैट्रिमोनियल हाउस है, अगर बेटे की डेथ हो गई है, तो जो वाइफ है उसका मैट्रिमोनियल हाउस है, तो उसको जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नहीं, ये अदिति ने एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है कि सेक्सुअल हरासमेंट डज नॉट इंक्लूड मैरिटल हरासमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट डज नॉट इंक्लूड मैरिटल हरासमेंट। शादीशुदा घर में अगर लड़की के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे वो सेक्सुअली गलत हो रहा है, चाहे वो फिजिकली गलत हो रहा है, चाहे इमोशनली गलत हो रहा है, तो डीवी एक्ट में वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है कि ये रोका जाए। लेकिन जब आप रेप की बात करते हैं, क्योंकि वो रेप की बात हम कर रहे हैं, इज नॉट इलीगल वाली जो बात कह रहे हैं, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं है अभी इंडिया के अंदर। तो रोका तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या उस लड़के को जेल भेजा जा सकता है मैरिटल रेप के ग्राउंड पे? द आंसर इज नो। Anybody else has any question on this? Right? As I said, अगर किसी ने ये लेक्चर्स अगर मिस कर दिए हों, तो मैंने लिंक ऑलरेडी डाल दिया है, मैं दोबारा डाल देता हूँ। ये यूट्यूब चैनल है हमारा, जो भी लेक्चर हम अभी सुन रहे हैं वो यूट्यूब पे हम डाल देते हैं। तो पुराने लेक्चर्स जो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, या इसके अलावा हम और कॉलेजेस के साथ भी लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, वो लेक्चर्स के लिंक्स और डीएलएस से क्या काम करता है, जैसे कि हम ये लेक्चर्स करा रहे हैं, तो हर लेडी का, हर विमेन का अधिकार है लॉ के अंदर कि उसे फ्री लीगल एड मिल सकती है। ठीक है, तो डीएलएस से क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में भी आप इस यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। सो नाउ आई थिंक द नेक्स्ट लेक्चर, द लिंक विल बी शेयर्ड सून। तो I hope everybody joins at that time. Thank you so much. Thank you for your time and patience. Thank you, sir. Thank you, sir. I think today's students ask many questions just because maybe they are very emotionally connected with the topic, or maybe you are here to guide to the students. नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम, I'm always there. No, you are always there, definitely, ma'am. but in the earlier session, student participation is less as compared to today. जी मैम, I hope मैम मैं हर लेक्चर में Today's session is more interactive.
अगर अगर स्टूडेंट सवाल पूछेंगे तो मैं हर लेक्चर में ज्वाइन कर लूंगा, आई हैव नो डिफिकल्टी। Yeah. जी जी Vanshika, are you there? Hello. Thank you, sir. जी मैम।